أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے آیتوں کے ہم ماضی کے invite you for my birthday party. It is on June 1. Sorry, Please accept my invitation and join the party. Have lots of fun and enjoy the weather. Hope to see you there. Your loving friends. Thank you. ذرا مائک بند کیجیے، انگریزی آپ کی چل رہی ہے۔ ہاں، تو ہم یہ دیکھنے لگے تھے کہ مختلف سیروں کے اندر ہم نے تھوڑا سا، میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ ہم نے کل یہ اس طرح سے آیتوں کا تذکیہ کیا۔ فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، فعلا وہ دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تو نے کیا۔ دیکھیں یہاں پہ لام کلمے پہ سکون آ رہا ہے، اس لیے ہم تو نے کیا کہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے فعل تم بھی دیکھ لیے ہم نے۔ آج ہم کو یہ دو دیکھنا ہے، فالتو اور فعلن، اور اس کے بعد آگے چل کر ہم تھوڑے آیتوں کا اور بھی کیا کہیں گے، تھوڑا انالیسس کریں گے، سب کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیے ذرا دیکھیے، اور یہاں پہ محسوس کیجیے کہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمے پہ سکون ہے اور تو ہے، اس لیے کیا کہیں گے، میں نے کیا، میں نے کیا۔ تو یہاں پر آپ کو آیتیں میں کی آئے گی، یعنی واحد متکلم کی آیتیں دکھ رہی ہے۔ تو آپ ذرا پڑھ کر اس کا ترجمہ شروع کر دیجیے، آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جو پڑھیے، الیوم الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہاں، کون پڑھیں گے پہلے؟ میں پڑھی سر۔ السلام علیکم۔ ماشاء الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین پورا کر دیا۔ تو اب یہ تو ہو گیا آپ کے اندازے سے ترجمہ بولے گا، اب آپ کو گرامر کے حساب سے بولنا۔ الیوم دن، آج کا دن، آج آج۔ ہاں، تو مجھے بتاؤ ہاں، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سر یہ یوم اسم ہے، اور الف لام لگانے سے معرفہ اسم ہے، اور یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ ہے مرکب۔ جملہ مرکب رہے گا، یہ نہیں پتہ۔ ہاں بھائی، اکمل اور کوئی بتا سکتے، اور کوئی بتا سکتے یہ کیا؟ جملہ فعلیہ ہے سر۔ کیسا پتہ لگا آپ کو؟ اکمل کو تو آپ نے ابھی کہا اسم ہے۔ نہیں اکمل تو ہے نا، یہ تو اب ذہن میں آ گیا، اب یہ فعل ہے، تو اکمل تو جو ہے فعل ہے، الیوم تو اسم ہے، اسم پھر ہے۔ بعد میں اکمل تو آ رہا ہے۔ بعد کا جو ہے تو اسم ہے، یہ فعل ہے، تو میں کیا کروں اس کو؟ پورا کیا اکمل تو بس۔ میں نے آپ سے گزارش کی، آپ سے میں نے یہ سوال کیا، یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، پھر جملہ اسمیہ ہے سر۔ کیسا پتہ لگا؟ یہ پہلا اسم سے شروع ہے نا سر، اس لیے الیوم جو ہے اسم ہے، جملہ اسمیہ سے شروع ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کی خبر لکم دینکم ہے، یہ لکم دینکم جو ہے جار مجرور بن کے متعلق خبر بنی، اور اکمل تو یہ فاعل ہے۔ اچھا، اکمل تو فاعل ہے، پکا؟ پکا ہے سر۔
पेश वाला आया ना सर, फाइल तो मरफू होने से। अच्छा अच्छा, इसम है तो कौन सा इसम है ये? ये मारिफा, नकीर? मारिफा इसमें सर। अच्छा, इसमें मारिफा है, इसम होने के लिए क्या लगता है उसको? जी जी, अलिफ लाम लगे हुआ होने से मारिफा। बस अलिफ लाम बताओ मेरे को कहाँ है? ये अल यौम, नहीं, अकमल की बात चल रही है। नहीं ये पहला जो है ना इसम है, तो इसमें दूसरा, इसलिए इसमें जुमला इसमिया बोल रहे हैं इसको, पहले इसमें से शुरू हुआ। आप और उसको ये छोड़ दो, आप जरा रुको, उसको छोड़ दो। हम्म, उसके बाद अकमल तो क्या है? अकमल तो क्या है बताओ? फाइल है, फाइल है। तो फाइल इसम रहता कि फेल रहता? फाइल फेल रहता है। फाइल फेल रहता। फाइल करने वाला रहता, काम करने वाला, तो वो इसम रहता ना? इसमें रहता है। तो ये इसम है क्या? ये फेल दिख रहा सर। अभी तो बोले आपने इसम दिख रहा, फाइल भी बोले थे आप। उधर पढ़ो अलियम फालतू, जरा वहां पढ़िए और साइंसा पढ़िए, फालतू का मतलब क्या है? जी सर, फालतू का, हाँ, फालतू वो तो मैंने किया, तो अकमल तो क्या होगा? मैंने बनाया, मैंने पूरा किया, तो फिर ये फेल है। फेल होगा फिर तो फिर फाइल कहाँ गया आपका? हम्म, इसमें हुआ है, फाइल कौन है? हुआ है। अच्छा, फालतू में कौन है फाइल? फालतू में हुआ है सर, तू है, हुआ तुम है। है, नहीं तुम है, तुम, तुम, तो अंतुम अंतुम अंतुम, अंतुम अंतुम में अंतुम तुम आना पड़ता है। तो अंतुम उसमें तुम अंतुम तो, अच्छा जरा अंतुम। बोलो, पाला पाला पालू, पालक हाँ, पालता पालना, पालता पालतुमा पालतुम होना, यहाँ पे तुम तो है ही नहीं। नहा सर इसमें नहानो, ये सर आना है सर, आना। हाँ, अब क्या बोले इसका, इसका जो है फाइल मैंने किया, तो मैंने किया, उसके लिए उधर जाके देखो, अकमल तो को उसके ऊपर बिठा के देखो। अकमल तू, हाँ तो अकमल का मतलब क्या है सर? मुकम्मल करना। मुकम्मल। हाँ, मैंने और कौन मुकम्मल करा? किया, आज तो मैंने फाइल कौन मुकम्मल होगा? किया, फाइल मुकम्मल कौन किया, होगा? आना है सर इसमें का, फाइल आना है। आप समझे आप? मैंने जी, मुकम्मल किया, ठीक है, मैंने मुकम्मल किया, वो पीछे यौमा को छोड़ दो। हाँ हाँ मैंने मुकम्मल, मैंने हाँ मुकम्मल मैंने किया। मुकम्मल, यहाँ तक ठीक ये है। तो जी ये जी, 12 में से है कि 2 में से है? ये 12 में से है सर। हाँ, 12 में से तो इसका इसम आता नहीं, इसकी जो है, जो हम्म, उसका उसका फाइल है, वो उसमें से, किस हालत उसके में साथ होता है? वो हालत में होता है, उसको बोलो रफा हालत में खुद होता है वो। हालत में मैंने रहता मुकम्मल किया। है। मैंने, अच्छा, अब ये जरा जरा खामोश रहना जरूरी है, मेरे पीछे पीछे भागो मत। अच्छा मेरा सर, बात खत्म होने तक का बात नहीं करना। जी सर, जी सर। आप बेहतरीन जानती, आप बहुत बड़ी आलिमा है, मैं मानता हूं। अच्छा, मैंने मुकम्मल किया, हो गया। तो अभी हम जी, पूछेंगे क्या मुकम्मल किया, किसे मुकम्मल किया, कुछ दिख रहा है देखो। दिख रहा सर, दीन दीन, दीन को मुकम्मल किया, इस, तो हाँ दीन, आपको जो है, फिर से मेरे पीछे पड़ गया। आप बोलो कि अगर मुकम्मल किया, जिस चीज को मुकम्मल किया वो मिलना है, तो वो मफूल की शक्ल में मिलेगा। तो उसकी हाँ एराबी दीन, हालत क्या होना चाहिए? या तो नसब है ना सर, दीनकुम, मैंने पूछा तो दीनकुम, बोलना, जी, मेरे को बोलते जाना, मैं कुछ नहीं आता। दीना हाँ का जी, जो है, नून पर जबर हम्म पढ़ रहे हैं हम, इसलिए नसब हो गया। और कुम हम्म, क्या है यहाँ पे? कुम जमीर है, मुत्तसिल जमीर, अच्छा, तो ये कौन सा मुरक्कब बदल है कोई? मुरक्कब इजाफी बन गया सर। हाँ, तो अब यहां से हम पढ़ेंगे, अकमल तो पढ़िए, मैंने मुकम्मल किया, तुम मैं, सबके लिए दीन, यानी तुम्हारा दीन, मैंने मुकम्मल किया, तुम्हारा दीन, बोलो। मैंने मुकम्मल किया तुम्हारा दीन, तुम हाँ, सबके अब लिए। जरा वहां पे देखो, फिर गड़बड़ कर रहे तुम। हम्म, लकुम के मायने क्या है?
लकुम के मायने तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम सबका दीन तुम्हारे लिए। और लकुम जो है, लाम जो है हर जर है, कुम जो है इससे मजरूर है, तो यहाँ पे जी भी एक मुरक्कब बन गया। ठीक है, यहाँ बना बना मुरक्कब जारी बन गया। तो मुरक्कब जारी मुरक्कब जारी जुमले में क्या बनता? मुतालिक खबर बनता। यहाँ पे तो खबर इसलिए है, जुमला मुतालिक फेल है। कहाँ से शुरू करे पढ़ना हमने? अकमल से पढ़ रहे, कहाँ से? अरे मुतालिक फेल, मुतालिक फेल बना सर। ठीक, तो अभी आप अपने नोटबुक पे लिखो, अल यौमा जो है ये मफूल फी ही है। क्या है ये? मफूल फी है। अच्छा, हाँ, मफूल फी ही का मतलब है जो ऐसा ज़र्फ जो हमें जगह की बात बताता है या वक्त की बात बताता है। तो अगर हमने पूछे तो मैंने मुकम्मल किया तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, कहाँ पर? तो जगह तो मालूम नहीं रहा, कब बोले तो यौम आज। ये आज बता रहा है, इसको बोलते हैं ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान। अच्छा अब ये सर ज़र्फ़ ज़मान, अरे जी जी सर, मैं बोल, ज़र्फ़ ज़मान। हाँ सर, ज़र्फ़ ज़मान। इसको सामने इसलिए लिए कि इसको मुकद्दम करे हमने, इस पे जोर देने के लिए। आज ये दरअसल जाना चाहिए पीछे, ये भी मुताल्लिक़ फेल के जैसा बनना चाहिए, लेकिन ये सामने लाया गया है इसलिए कि इस पे जोर देना है। आज मैंने मुकम्मल किया तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ये पूरा जुमला बना। ठीक है, हाँ। जी सर। चलिए भाई, कोई और आ जाइए, दूसरा जुमला बताइए। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जरा मायने बताइए। क़ाला ये सर फेल है। इसके बारे में पहले आपने बताया था, ये अलिफ वाव या में से एक अल्फाज अलिफ से बना है, तो ये हुरूफ इल्लत जिसे कहते हैं ना सर, वो तो तो ये आप इसको नाम दे दीजिए, इसको कहेंगे बीमार फेल। बीमार से इसका नाम है अजवफ। क्या नाम है? अजवफ। हाँ, अजवफ यानी दरमियानी आइन कलीमा जो है, बीमार है इसका। अच्छा, ये कवला था, क्या था? कवला, कौला, यानी खौला नहीं, कवला। कवला। हाँ हाँ, तो वो हरफे इल्लत को हटाकर उसकी बीमारी दूर करने के लिए, तलफ़ुज़ के आसानी के लिए वाव को अलिफ में बदला गया। ठीक है, ये हम पूरा के पूरा पढ़ने वाले, बहुत पढ़ने वाले इंशाअल्लाह, बहुत जोर में पढ़ने वाले। फिलहाल आपको पहचान होने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक के सामने आ जाना चाहिए। ये फेल है, हरफे इल्लत लगा हुआ है, अलील है, इसको बीमार बोलते हैं, मुअत्तल फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुअत्तल। मुअत्तल। मुअत्तल यानी सिक, सिक वर्ब है, सिक यानी बीमार, अलील है। ठीक है, छोड़ दो। काला का मतलब क्या है भाई? वो 2 में से है कि 12 में से है? में से सर। शाबाश। तो अब इसका करने वाला कहीं नजर आ रहा है क्या? देख, हाँ सर, ये इसमें जैसे पूछेंगे तो सर नेक्स्ट जो है उसमें असलम तू आ रहा है। असलम तू, मैंने तस्लीम किया, उसने कहा मैंने तस्लीम किया। शाबाश। ये जो है किसी का कौल आता है, खाला के बाद क्या आता है? उसने कहा, ही हाँ, से। व्हाट डिड ही से? आगे उसका जो है स्टेटमेंट आ रहा है, कहने वाले का कौल आ रहा है, काला कौल। तो अच्छा। काला का मतलब उसने कहा, तो क्या कहा पूछना? उसने कहा असलम तू, तो पढ़ते वक्त बोलेंगे हमने उसने कहा। उसने कहा बोल के छोड़ देना, वो जुमला खत्म हो गया। अच्छा, अब आगे जो है उसका स्टेटमेंट आ रहा, उसका जो कुछ कहा गई बात, उसकी बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहे हैं।
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जैसा इंग्लिश में पढ़े थे ना, ही सेड दैट, यस सर। हाँ, तो उस माफिक है। काला का मतलब उसने कहा। अब यहाँ पे फेल आ रहा है दूसरा, जो यहाँ से जुमला चालू हो रहा है, वो एक जुमला खत्म हो गया, काला उसने कहा। यस। हाँ, अब पढ़िए असलम तो क्या है। अब अब असलम ये तो एक एडवांस वर्ब है, ठीक है। मजीद हाँ, सीन लाम मीम इसका मादा है, लेकिन इसके साथ में हमजा लगा हुआ है, तो ये भी जो है मजीद ही है। शाबाश। तो तो ये अब इतना ही परेशानी है कि आखिर में क्या है, लाम कलीमे पे सुकून है और उसके बाद में तो आया है, तो हमको हाँ तो हमारे माजी के रूल पे चल के पहचान सकते हैं। फालतू यस यानी मैंने किया, असलम यस। तो का मतलब मैं ईमान लाया, अच्छा, मैं असलम ईमान। तो का मतलब है आई सबमिटेड, मैंने रुजू किया, मैंने रुजू किया है कि मैं सजदा रेज होके नाक जमीन पे लगाकर मैंने मान लिया कि अल्लाह एक है और मैं उसका बंदा हूं। अच्छा तो इसका अगर हमने हमजा निकाल देते हैं तो सलामा बनेगा। वो आया पीस में, पीस यानी के सुकून में, सलामा। लेकिन अच्छा। इसको बना है असलम तो, ठीक है, इस्लाम खुद ही पीस है, मैं रुजू हो गया अल्लाह के सामने, मतलब हो जाए। हाँ, अब आगे पढ़िए। आगे ली रब्बी। ली हरफ जर है, रब इसम है और जरी हालत में है, तो ली रब्बी ये मुरक्कब जारी हो गया इतना, ली रब्बी। अल शाबाश। आलमीन जो है, अब रब्बिल आलमीन, रब जो है ये भी अखफ किया हुआ इसमें, और अल जी, आलमीन ई ऊना ईना ईना, मतलब ये ईना आखिरी वाला ये जबरी हालत में आ रहा, तो अच्छा, मुरक्कब जमा इजाफे का के लिए। इसमें है, हाँ, तो मुरक्कब जमा इजाफे, इसमें है। यस, मुरक्कब इजाफे के लिए एक अफक अखफ इसम चाहिए और दूसरा इसम जो है जर्री हालत में चाहिए। तो आलमीन के रब मतलब जहानों का रब, तो ये मुरक्कब इजाफी, तो ये डब्बे में डब्बा जैसे सर बताते, तो वैसे है मुरक्कब जारी प्लस मुरक्कब इजाफी। अब इसको और एक बार रवानी से पढ़ लीजिए अरबी में, और रवानी से इसके मायने उर्दू में समझाइए। अच्छा, कौला असलमतु लिरब्बिल आलमीन, उसने कहा मैंने तस्लीम किया, मैंने ईमान मैंने लाया, ईमान लाया। मैं ईमान लाया तमाम जहानों के रब के लिए। शाबाश। तो अगर हमने तमाम जहानों के रब के लिए, बहुत सही है, टेक्निकल बिल्कुल सही है। अपनी सादी उर्दू में बोलेंगे, उसने कहा मैंने मुकम्मल तरह से तस्लीम कर लिया या मैं ईमान में आ गया, ली रब, रब की, हाँ, जहानों के रब के लिए, जहानों के रब का, ऐसा बोलो, ठीक है। यस। तो उर्दू में ली का और एक मायने नहीं निकलेगा, इतना ही बोलेंगे, जहानों के रब के लिए या जहानों के रब के सामने मैंने पूरी तरह से रुजू कर लिया। बहुत अच्छे, शाबाश, बेहतरीन। तो ये समझा। काला आने के बाद में एक और एक जुमला आता है, वो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। और काला ही सेड, और वो स्टेटमेंट हो गया असलम तो रब्बिल आलमीन, बे रब्बिल आलमीन। काला एक वर्ब है, उसका उसकी कहावत है, उसकी कही हुई बात को हम कौल बता रहे हैं, ये कौल है, असलम तो से कौल है, व्हाट डिड ही से, असलम। असलम। चलिए भाई, कोई और आ जाइए जल्दी जल्दी। व अतममतु। जी बेटा, पढ़िए पढ़िए, अच्छा पढ़ो पढ़ो। अतमम तो का मतलब निकालिए, फिर फालतू पे चले जाइए। फालतू का मतलब क्या है, लाम कलीमे पे सुकून आया और तो आया तो मैंने किया। अतमम तो मैंने का है, हाँ, मैंने तमाम किया, पूरा किया। मैंने देखो, पूरा किया। हाँ, कामिल कर लिया, मुकम्मल करना और पूरा करना दोनों सेंटेंस में आ रहे हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं मैंने मुकम्मल भी कर दिया और पूरा भी कर दिया, यानी कि अब कोई बात बाकी नहीं रही इसमें। अब एक फुल स्टॉप, कॉमा, कोई चीज का इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला की शरीयत के हिसाब से तमाम चीज मुकम्मल हो चुकी है। कोई भी अगर कोई नई चीज पेश करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, विदा हो जाएगी।
चलिए पढ़िए। अत्ममतु का मतलब क्या है? तमाम किया, मैंने पूरा किया। मैंने पूरा हाँ, किया। आगे पढ़िए। अलैकुम, तुम सब हाँ, ये पर। क्या है? तुम सब पर, ये हर जर, ये बोलते जाना हर जर है। अलै 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 अला हर्फ जर है, कुम मुत्तसिल ज़मीर है जमा के लिए, हाजिर मुज़क्कर जमा के लिए। तुम और सब पर। ऐराबी हालत, ऐराबी हालत। हालत जर में है अल्लाह की वजह से। ठीक, शाबाश। आगे पढ़िए। नेमती हाँ, मेरी नेमत। ये अच्छा, ये ये इस क्या है? ये क्या चीज है भाई, जरा समझा के बोलिए। नेमती अखफ किया हुआ इसमें है, अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और उसको हाँ, आ, ये या मतलब कलिए। लास्ट में या तो मुजाफ इलैही है वो। नेमती मेरी नेमत, हाँ, मुरक्कब इजाफी शाबाश। है। हाँ, अब जरा उसको, तो उसको बराबर पढ़िए, इबारत को अच्छा पढ़िए, अरबी में और उर्दू में तर्जुमा करें। तमाम तो अलैकुम नेमती, और मैंने पूरा किया तुम पर मेरी नेमत, तुम सब पर मेरी नेमत। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। क़ाला रब्बी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। क़ाला हाँ, अब उसने कहा, काला का, उसने कहा। काला मा का प्रोनाउंसिएशन में जरा केयरफुल रहिए। वो माजी, काला भी हो सकती है, कालू का शोहर काला, वैसे होना काला। हाँ क़ाला उसने कहा। अच्छा, क्या कहा उसने? रब्बे इन्नी, नहीं रब्बे इन्नी ज़लमतु, रब्बी तो मुज़ाफ है, अखब क्या वो है, इसम है, और इन्नी में जो है वो है नहीं, उर्फ इन्हीं भी जर नहीं, है। अभी मुझे पहले रब्बी को पढ़ाओ, रब्बी पे रहो, बताओ रब्बी क्या है? रब्बी मेरा रब, हाँ, मेरा रब। और यहाँ पे जो जेर आ रहा है, ये जो है अखफ किया हुआ है, इसलिए कि उसके पहले अपने पास अलिफ में लाम भी है और तनवीन भी नहीं। निदा आ रहा है, निदा निदा है, इसलिए ये अखफ हो गया। अच्छा, हाँ, ऐ मेरे रब, इसका इन्नी मतलब क्या है? इन्नी हाँ, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे आए रब, मेरे रब। हाँ, इन्हीं का मतलब बताइए। इन्नी मुझे, मुझसे, क्या चीज है ये, क्या चीज है? इन्नी मुझे, बेशक मैं, क्या चीज, ये क्या चीज है, जरा समझाइए। उर्फ जर है, इन्ना कहाँ बेशक, है इसमें? प्रोफेसर कहाँ है इसमें? ये ई ई जो हो रहा ये जो हो रहा, तो हर पे जर कहाँ है? जेर है। हर पे जर से नहीं देखा आपको? इन्नी तो बेशक मैं, बेशक मैं, हाँ, तो यहाँ जरा रुक जाइए। यहाँ पे इन्ना, इन्ना है हर, कौन सा हर का इन्ना? हर जर, इन्ना हर जर नहीं है हर्फ ताकीद, हर हर्फ ताकीद नस्ब, हाँ, हर पे तौकीद व नस्बिल, और इन्ना के साथ में कोई भी इसम लगेगा तो वो तौकीद और नस्ब हो जाएगा, नस्बी हो जाएगा। इन्ना की अपने खुद का इसम होता है, ठीक है। तो जी यहाँ से जो है रब्बी के बाद में जो जुमला बन रहा है, वो क्या बन रहा है, जरा बात आप बताइए। इल्मी का मतलब हो गया बेशक। हाँ, अना की जो मुतकल्लिम की जमीन है या आ गई है, इसका मतलब है बेशक मैं, ठीक है। आगे हाँ बढ़िए। बेशक मैं जलम तू, ये क्या? मैंने अपने आप पे जुल्म किया, मैंने जुल्म किया। हाँ, मायने नहीं मांगा मैंने पूछा कि ये क्या चीज है। ये फेल है, जलम तू, इसम है, या हर्फ है? जलम तू, जलमा, जलमा फेल है। उधर जा, उधर जाके देखो, फाअल तो पढ़ो। फअल तू, हाँ, अच्छा, तो वहां पे लाम कलिमत जलम तू, सुकून है, उसके बाद तू है, जलम तो का मतलब, तू जो जमीर लगी हुई है, ये रफा हालत में है, और जलम का मतलब है मैंने जुल्म किया। हाँ, तो ये फेल हो गया, ये वर्ब हो गया। हाँ, तो आपको मैंने वर्ब जुल्म किया। पहचानना,
आपको वर्ड पहचानना आना जरूरी है, इसलिए ही हाफिज साहब ने आपको कई मर्तबा पूरे गर्दाने कराए। तो पढ़िए ज़लमा, ज़लमा ज़लमा नहीं पढ़ के बताइए मुझे पूरे, आपको पूरे पढ़िए। ज़लमा ज़लमा ज़लमू हाँ ज़लम ज़लमत ज़लमता ज़लमना ज़लमता ज़लमतुमा ज़लमतुम ज़लमती ज़लमतुमा ज़लमतुन्ना ज़लम ज़लमतु ज़लमती मिल गया जलम तो मिला कि नहीं? हाँ मिल गया। नहीं। तो ये अपने हमारे आंखों को प्रैक्टिस होना कि वर्ड कौन सा है और किस माजी है, मुजारे है, तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे बेटे अपन, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो आगे पढ़िए। नफ्सी, नफ्सी मेरे नफ्स पर। हाँ, ये कैसा पता लगा आपको? ये भी कौन सी नफ्सी क्या है मेरा बताइए? मेरा है ना, नफस मेरा ये मेरी कौन है नफ्स। बताइए मुझे, ये कैसा समझे आप? नफ्स ई क्या है, है? इसम है, फेल है? अपने आप अपने आप देखो ई ऊ आ नहीं चाहिए, कोई मायने नहीं चाहिए, इसकी हिकमत बताओ क्या चीज है ये? नफ्सी। जैसा गलम तू है पहले वैसे ही जलम से मारो बोले, गरम से मारो बोले। पहले मुझे बताओ नफ्स ये इसम है, फेल है कि हर्फ है? इसम है सर। अच्छा, इसम है तो नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा। नकीरा है ये, तो इसमें तनवीन तो दिख रही नहीं। मेरा नफ्स। इसम की क्या पहचान है? अलिफ लाम रहेगा या तनवीन रहेगी? दोनों भी नहीं है। ये अखफ किया हुआ इसम है, अखफ किया हुआ इसम है, बोलो। अख किया हुआ वो इसम है। अख नहीं, अखफ। अखब किया हुआ। हाँ, और या मुतकल्लिम उसको जमीर लगी हुई है, तो ये मुदाफ मुजाफ इलैहि है, ये मुरक्कब इजाफी है, और ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? नफ्सी मेरा नफ्स तो दोनों होता सर, ये मुजक्कर भी मोनस। ऐसा कैसा होता है कि कोई भी तुमको मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों दोनों कैसे मिलते हैं? वो नफ्स ये मुअन्नस है, मेरी नफ्स। अच्छा। हाँ, पूरा पढ़िए। काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, पढ़ो, मायने बोलो। काला के काला मतलब, रब्बी, कहा उसने कहा, हाँ, ऐ हाय मेरे रब। मेरे रब, मैंने जुल्म किया अपने आप पर। हाँ जी, मैंने जुल्म किया अपने आप पर, ठीक है। जी। मेरे रब मैंने जुल्म किया, उसने कहा मेरे रब मैंने जुल्म किया अपने आप पर। चलिए अगले कैंडिडेट आ जाओ जल्दी से। قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا हाँ, अब इससे भी قال बहुत, एक बेटा जरा गड़बड़ ना कर, बहुत सारे चीजें सीखने के इसमें। हाँ चलिए, जी काला बोलो क्या मतलब है? قال फेल है, थर्ड पर्सन हाँ सिंगुलर मैस्कुलिन। हाँ, और अजवाफ है, बोलते इसमें जाओ अजवाफ। इनसाइड डोअर और आउटसाइड डोअर होता है। तो इसमें बाहर ये आउटसाइड डोअर दिख नहीं रहा क्योंकि दम्मा वाला कोई दिख नहीं रहा आगे, तो इसीलिए इनसाइड डोअर तो होगा मायने उसने कहा। चलो अच्छा है, रब्बी, रब्बी ए मेरे रब। ठीक है। हाँ, अब इन्नी हाँ, इन्नी इन्नी का है मतलब बेशक मैंने। बेशक में। अब जरा बताओ दाऊतु। दावतू ये फेल है, लाम कलमे पे सुकून है, इसलिए तू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और अब इसके माने, मायने मैंने होंगे पुकारा, मैंने मैंने दावत दावत दी, दी, बुलाया, दावत दी। मैंने दावत दी, मैंने बुलाया, मैंने पुकारा, ये तमाम चीजें हो जाती जी। हैं। अच्छा आगे चलिए। कौमी, कौमी ये नाउन है सर, इसम नाउन है। है, और आगे क्या लगा हुआ है इसको? कौमी या मुतकल्लिम लगी हुई है कि नहीं, बोलो। या मुतकल्लिम, जी जी, मेरी कौम। हाँ,
हाँ, तो ये क्या बन गया? कौम इसमें है, अकफ किया हुआ है, या लगा हुआ है, तो किया क्या हुआ बन है, गया? मुदाफ मुदाफ इलैही। मुदाफ मुदाफ इलैही बन गया सर। अब यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक पढ़ो, यहाँ तक पढ़ के आओ। काला, उसने कहा, कौला, उसने कहा, रब्बी, ए क्या मेरे कहा? रब, है मेरे रब, बेशक इन्नी, मैंने मैंने दावत दी, मैंने दावत दी मैंने दावत दी मेरे किसको? कौम, वेरी गुड, ठीक है, मैंने लैलन व दावत दी। नहारन। मैंने बोला नहीं, आपको वहां जाओ बोलो। हाँ, तो अब यहाँ से पढ़ते आइए, मुझे बोलिए इसके अंदर मफूल है कि नहीं? सर इसमें मफूल नहीं, दावत दी मेरे कौम, कौम मफूल है ना सर? हाँ, तो यहाँ पे कौम के ऊपर जबर था, लेकिन वो या मुतकल्लिम ने उसको पूरा के पूरा निगल लिया, तो ये हाँ। बन गया हमारे मफूल। मफूल भी ही बोलो। मफूल भी ही बन गया, क्योंकि या मुतकल्लिम ने उसके इसको क्या कहते हैं उसको, हरकत को हाँ, तो ठीक है, चूस लिया। nullify कर लैलन बोलो, लैलन। लैलन रात, हाँ, और व हरफ वनहारन, व नार लैलन नहारन और वनहारन। दिन। तो अभी आपने पूछो यहाँ से यहाँ तक आ गया। काला का मतलब उसने कहा, है मेरे रब, बेशक मैंने पुकारा या दावत दी मेरे कौम को। यहाँ तक मफूल तक मिल गया, कहने वाला मिल गया, ठीक है। अच्छा, जी। अब मुझे बताओ कि ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? काला तो एक जुमला फेलिया हो गया, हाँ, उसके बाद का जुमला कौन सा आ रहा? वो जुमला इसमिया हो जाएगा सर, क्योंकि रब्बी ओके, इसम है ना। रबी से शुरू हो रहा है, और उसके बाद में आपको ये भी चेक करने को मिल गया इन्नी। हाँ, इन्ना जब भी दाखिल होगा तो जुमले इस्मिया में दाखिल होगा। हाँ। तो इसकी खबर कहाँ है? मुब्तदा इसकी कहाँ है, खबर ये खबर कहाँ है? लैलन व नहारन है ना सर? वो खबर कैसी होती? नहीं सॉरी। आपने कहा मुब्तदा है रब्बी, हाँ ठीक है, छोड़ दो उसको। जी। अब चलो मुब्तदा। इन्नी का मतलब बोलो मुझे। इन्नी, बेशक मैंने। तो आपको याद होगा इन्ना, इन्ना के मायने क्या है भाई? इन्ना इन्ना बेशक, किसको कहते हैं? इन्ना ये किसे हरफ कहते हैं? तौकीद है, हरफ तौकीद हरफ नस्बी। तौकीद व नस्ब। और इन्ना जी कौन से किस्म के जुमले में दाखिल होता? सर, फेलिया में होता? जी नहीं मैं पता सर मुझे। अरे, हमने 15 दिन पढ़े इसको। ये जुमला इस्मिया में दाखिल होता, जुमला इसमिया में, सॉरी सॉरी, जुमला इसमिया और में जुमला इस्मिया में दाखिल होने के बाद क्या करता? वो जोर पैदा करता है ना सर? दो बाद में पैदा करेंगे, पहले उसमें क्या क्या होता है बोलो। जुमला इस्मिया में दो चीजें क्या होनी चाहिए? मुब्तदा और खबर। तो इन्ना आने के बाद मुब्तदा में क्या तब्दीलियां थी? वो आने के बाद मुब्तदा। बेटे, इन्ना जब भी जुमला इस्मिया में आएगा तो पुराना वीडियो जी देखो या नोट्स चेक करो। इन्ना जब भी जुमला इस्मिया में दाखिल होता तो उसका मुब्तदा को अपनी इस्म बना लेता हो, तो इस्मो इन्ना बनता और उस पे जबर आ जाता, नस्ब हो जाती है वो। तो यहाँ जी। पर इस्म जो है या मुतकल्लिम है, और उसको उसने नस्ब कर दिया है। यहाँ पे इन्ना आया है तो या मुतकल्लिम की एराबी हालत नस्बी है। नस्बी है। तो अगर इन्ना को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? अगर इन्ना निकाल दो, इन्ना तो निकाले तो क्या रहेगा? इन्ना निकाल देंगे तो या बचता है सर। या बचता है, तो या किसकी तब्दील शुदा शक्ल है? अना। अना, अना की। अना जब तब्दील होके नस्ब में जाता है तो या बन जाता है। तो जरा जी। मेरे साथ पढ़ो, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, पढ़ो। इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, हाँ इन्नहा, इन्नहुमा, इन्नहुन्ना, हाँ, इन्नका, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्नकी, हाँ, इन्नकुमा, इन्नकुन्ना, इन्नी, इन्नी। ये जी तुम्हारे सामने जो है ना,
अगर उसमें से इन्ना निकाल देंगे तो अना बचेगा खाली, अना दाउतु रहता है, उसमें जोर पैदा करने के लिए इन्ना डाले तो इन्ना ने अना को बदलकर इन्नी कर दिया। ये इन्नी आपके कर लिए नहीं दिया। कह रहा हूं मैं, तमाम जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भूल जाते हैं, तो ये भूलने की बात को बंद करो और चालू हो जाओ। अना है वो, इन्ना के बाद आया तो इन्नी हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर मुक्तदा अना था, वो इन्ना का इस्म बन गया। इस्मो इन्ना क्या हो गया? इन्ना प्लस अना, इन्ना प्लस अना इज इक्वल टू इन्नी। तो यहाँ पे इन्नी। जो मुक्तदा है अगर इन्ना निकाल देंगे तो अना रहेगा। अब अना खबर रहेगा। क्या है? खबर कौन सी है? खबर जुमले फेलिया है। बोलो क्या है खबर? जुमला फेलिया। अच्छा, इन्नी। जुमला फेलिया जरा जोर से पढ़िए, क्या है वहां पे? दाऊतू। दावतु कौमी। हाँ, तो जुमला फेलिया के अंदर हमारा इस्म कौन है जो फाइल बन रहा? कौम। कौमी। नहीं नहीं नहीं, फाइल फाइल फाइल। फाइल, सॉरी। ये बोलो। अना। हाँ, फिर अना है जो कि यहाँ पे बदल कर क्या हो गया? दाऊतू बन गया। तू हो मैंने गया दावत। दावत दी, क्या बन गया? मैंने दावत दी। दावत दी मेरे तो कौम। खबर में जब आपको फेल दिख रहा तो फेल का करने वाला मिलना जरूरी है और उसका एग्रीमेंट होना इन्ना के साथ के इस्म से मुताबिकत में आना होने। तो देखो, दाऊतू में अना है, इन्नी में अना है, हाँ दोनों में भी एग्रीमेंट है, समझे ना? उन्हें पलट के किधर जा रही है वो खबर? अपना फाइल जो है वो इन्ना की अना से मिल रहा है। बेशक मैंने, फिर मैंने ही दावत दी, जी। क्या हो रहा वो? बेशक मैंने मैंने ही बहुत दावत दी या मैंने ही दावत दी। अब उसके बाद में जो है वो जुमला फेलिया बन रहा है, तो चेक करो किसको दावत दी? तो मेरे कौम को दावत दी। तो इसको इस तरह से आपको पास नोटबुक में लिखेंगे आप और रखेंगे हमेशा के लिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। ये जुमला इस्मिया, यहां से यहां तक जुमला इस्मिया हो रहा है, ये बन गया हमारा इस्मो इन्ना, और यहां से बन गई खबर इन्ना। खबर के अंदर फेल है और उसका करने वाला सब्जेक्ट आई है, मैंने दावत दी। इन्ने का मतलब बेशक मैंने दावत दी, किसको दी? मेरी कौम को। इतना खत्म हो गया। अब यहाँ पे लैलन जो आ रहा, इसका ही कनेक्टेड पार्ट है। कब दावत दी रे तूने? कब दिया दावत? रात और दिन। रात का मतलब अभी खामोश रह के सुनना, बीच में से बोलना नहीं। तो ये हो गया एडवर्ब। कब दावत दी? तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। कब दावत दी? टाइम बता रहे, रात और दिन। मैंने रातों को और दिनों को दावत दी। क्या मतलब हो रहा है? तो इसको बोलते हैं मफूल। सब लोग सीखो ये मफूल फीही। अब तक का ये जो है मफूल बिही। मफूल के ऐसे 5 किस्में होती है, इंशाअल्लाह आपको आगे बस अगले हफ्ते पढ़ाने वाले हम लोग। तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस इसलिए करता हूं मैं कि 8 दिन में 10 दिन में वो याद हो जाता। समझ में आया आपको? तो ये जुमले के मुताबिक क्या कहेंगे? ये जुमले में इतना एक फेलिया है। उसने कहा मेरे रब, बेशक मैंने दावत दी। मैंने 2 बार बोलने के बाद मैंने ही दावत दी। किसको? मेरी कौम को। कब दी रे भाई? रातों को और दिनों को। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे 2 किस्म के मफूल है। एक है मफूल बिही और ये कौन है? मफूल फीही। ठीक है भाई? तो अभी से याद रखो, थोड़ा थोड़ा मफूल फीही आते जाएगा, मफूल लहू आएगा, मफूल मुतलक आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। एक साथ अगर आप पे मैं बमबारी करूंगा तो आपको परेशान हो जाएंगे। अभी से थोड़ा 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 बताते चलते आपको। ठीक है? समझ में आया? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़िए भाई। इनने कोई है? देखिए, ये किसी एक स्टूडेंट को मैं या उसकी तंबी कर रहा हूं या उसको मैं टोक रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये सबके लिए पढ़ने के लिए है। आप सब लोग इसकी तरफ ध्यान दीजिए और पढ़िए।
ताकि आपको मुख्तलिफ किस्म के जुमलों की क्या कहेंगे एनालिसिस करना है, उसका इजरा करना है। हाँ चलिए पढ़िए, कोई पढ़ रहे बेटा पढ़ो, सर एक कंफ्यूजन था सर, बताइए साहब। अभी जो आयत पढ़ी गई सर उसमें खाला रब्बी पे एक सेंटेंस खत्म हो जा रहा सर। जी जी बिल्कुल, काला पे खत्म हो जाता। तो हमने अच्छा, कहा ना, उसने कहा बोलो, उसने कहा। तो क्या कहा, यहां से यहां तक का उसका कौल है। He said, what did he say? He said that, oh my cherisher, inni certainly I called my people days and nights. अब समझ गए? इंग्लिश में करेंगे तो that आएगा। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो इनडायरेक्ट स्पीच यानी उसके मुंह में से निकला हुआ वर्ड हम लेके बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच है। उसने क्या कहा रे भाई, ये कहा। आपको अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ने कहा कि वो कल नहीं पढ़ाएगा। एक है कहा और दूसरा है कौल, समझे ना? एक कहने वाला शेयर है एंड सेकेंड पार्ट इज स्टेटमेंट ऑफ हिज, जैसा कोर्टों में कहा जाता है ना, उसका स्टेटमेंट ले लो, ये स्टेटमेंट हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे वो यहाँ पे पढ़िए, आप पढ़िए भाई साहब, अभी जो पढ़े थे ना, बोले ना, वो पढ़िए। इन्नी, बोलो बोलो बोलो। हाँ बेशक में, शाबाश। तो याद रखो, ये आप जो है जरा इससे दोस्ती कर लो। हम जब पढ़े थे, जब मैंने बताया था आपको, इन्ना जब भी आ रहा है तो आपका पहले सिग्नल मिल जाना चाहिए। इन्ना दाखिल होता है सिर्फ जुमले इस्मिया में, और इन्ना दाखिल होने के बाद जो मुब्तदा होता है उस पर अटैक करता है वो, और उसको बना देता है इन्ना का इस्म, तो इसको बोलते हैं इस्मो इन्ना। यहां पे देखो, इन्नी तो बन गया ये सर्टेनली आई। सर इन्नी बेशक मैंने देखा एक नहीं, और मुझे नहीं, आप नहीं चाहिए मुझे, आप नहीं चाहिए, कोई और बोलेंगे। आपका हो गया ना, एक बार बोले ना आपने। नहीं बोली सर, अभी बोल रही थी मैं। अच्छा चलिए, आप बताइए फिर इसके अंदर क्या क्या है। पहले हाँ, बताइए कि ये जुमला कौन सा है। इन्ना से शुरू हो रहा है सर। मैंने तो बताया ना, वो तो कौन सा जुमला पूछा मैंने। हाँ, इन्ना। मैं जो पूछूंगा उसके जवाब देना है आपको। हाँ, ये इस्मिया जुमला है सर। ऐसा पता लगा आपको? ये इन्ना अना आ रहा ना इसमें मैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। देखो, इन्ना जब भी आएगा, आपका कहना यह रहना कि इन्ना सिर्फ और सिर्फ जुमला इस्मिया में दाखिल होता है। लिख के रखो आप बस, इन्ना आ गया कोई जुमले में, हाँ हाँ नहीं, पहले लिखो, इन्ना जब भी कोई जुमले से पहले दाखिल होता है तो वो जुमला इस्मिया में दाखिल होता है। अच्छा, और जुमला इस्मिया में आपको दो चीज लगते हैं, क्या क्या लगते हैं? मुब्तदा खबर। तो इन्ना को कट कर देंगे आपको। अब यहाँ पे मुब्तदा कौन है बताओ? अना है सर। शाबाश, अना। तो ठीक है, ये अना हो गया, ठीक है। और इसको इन्ना लगा दिया अपन ने, समझे? तो ये बन गया इन्नी। जी आप सर, समझे? जी। तो इन्ना ने अपने इस्म पर अमल किया और उसको तब्दील करके नसब में लेके चला गया, ठीक है। यहां तक ठीक हो गया। तो ये मुब्तदा मिल गया अपने को। फिलहाल इसको कहेंगे हम इस्म इन्ना। अब हमको पहचानना खबर किधर है इसकी, क्योंकि जुमला इसमें है बेसिकली। खबर बताइए मुझे जरा भी। खबर वो रायतू है ना सर, मैंने वो तो देखा। जरा गड़बड़ नहीं करे, मैं जो पूछूंगा उतना ही बताना, और है ना मत बोलो मेरे को, मुझे बोलो क्या है खबर, कौन सी है, कहां से शुरू हो रही, कहां तक। ये अहदा अशरा कौकबा। वो सब नहीं बोलने का, मेरे को बताओ खबर शुरू कहां से हो रही, कहां तक जा रही है,
आप मुझे बताएंगे। तो वो रायतु से शुरू हो रही ना सर खबर, रायतु अहदा अशरा। हाँ, तो राय तो क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ फेल है? है सर, फेल है फेल। हाँ, तो ये खबर में क्या है, ये खबर कौन सा किस्म की है? वो रायतु मैंने देखा। मैं पूछता हूँ आपको, ये आम है क्या? तो आप बोलते हैं, नहीं ये लिबोली का झाड़ है। ये माजी की खबर है सर। तो आप कहना क्या चाहिए, ये ऐसा जुमला इस्मिया है जिसके अंदर खबर जो है जुमला फेलिया है। बोलो फिर से, बोलो मेरे साथ, ऐसा जुमला इस्मिया है। मैं यहाँ लिखता हूं, ये जुमला इस्मिया की एक किस्म हमने पढ़ाई थी। आप, एक ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर आपको इस्म मिलेगा और जो खबर मिलेगी ना वो जुमला फेलिया होगा। हाँ पूरा का पूरा फेलिया जुमला खबर की शक्ल में आएगा। तो आपका काम है ये बताने के बाद आप बोलना ये जुमला इस्मिया है, इसके अंदर इस्मो इन्ना जो है अना है और इसकी खबर शुरू हो रही है राइतू से। राइतू जो है फेल माजी है जिसका करने वाला तू यानी मैंने देखा। अब यहाँ पे अना आ गया, इसके अंदर भी अना है जी। और यहाँ पे भी करने वाला कौन है? अना। अना है। क्योंकि यहाँ पर इन्ना ने इसको नस्ब कर दिया, या राइतु के अंदर ये जो है ये रफा हालत में ज़मीर है, मैंने देखा। जी जी ठीक है, मैंने सर, देखा, देखा। शाबाश। तो यहां से शुरू हो रही है, अपनी खबर शुरू हो रही है, मैंने देखा। क्या देखा? जी। तो यहाँ अहदा अशरा कौकबन, मैंने देखा। ये जो एक। ये जो मुरक्कब आ रहा ना, इसको बोलते हाँ हैं अददी मुरक्कब। मुरक्कब अदद वाला, अहदा अशरा, एक और 10, एक 11। और 10 11 सितारे। जी जी। तो अगर यहाँ पे हम इसकी मैंने और एक ताबीर कर दिया, आपको बता दिया, तो ये क्या होगा? ये होगा इन्ना यानी कि मुब्तदा, और उसके अंदर मुब्तदा के साथ में इन्ना जो के साथ जो है आपका मुब्तदा जो है इसमो इन्ना बन गया। इन्ना प्लस अना, फिर यहाँ पे खत्म हो जा रहा मुब्तदा का शक्ल, और यहाँ पे खबर के अंदर इतनी चीजें आ रहे। मैंने देखा अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा ये नंबर्स है, 1 + 3, 1 और 3 13। कौकबन किसे देखा? सितारों को देखा। तो ये मफूल बन रहा है और इसके अंदर एक मुरक्कब बन रहा है, वो भी उसको छेड़ेंगे नहीं हम, आगे चल के उसके बारे में आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का भाई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए थोड़ा आसान वाला देता हूं मैं आपको, ये देखिए, बिल्कुल आसान आसान है। अब जो जिन्होंने नहीं किए थे वो नुमाइने भी देखना है और इधर समझाना भी। चलो पढ़ के बताओ, चलो पहला पढ़ो, कोई बच्चे जो नहीं पढ़े अभी तक का पढ़ो। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। हाँ जरा यहाँ पे बताओ फेल कौन है? खत्म ही फेल है। बस, क्योंकि हमें 3 जबर नजर आ रहे हैं, तो खतमा। और खतमा जो फेल है हमें बताना पड़ेगा कि 2 के ग्रुप में है या 12 के ग्रुप। 2 के ग्रुप। अच्छा, 2 के ग्रुप में 2 चीजें हो सकती है, एक तो छुपा हुआ होगा इनसाइड या बाहर होगा रफा हालत में। तो हम जरा चेक कर लेंगे। खतमा के बाद अल्लाहु आ रहा है, लफ्ज़े जलाला आ रहा है, तो फाइल कौन हो गया भाई साहब? अल्लाहु। खतमा अल्लाह क्या हो हो गया। गया? फेल हो गया। अब पढ़िए, अब अल्लाह ने, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। मायने बोलो। अल्लाह ने दिलों पर महर लगा दिया। यहाँ दिलों दिलों पे लाना नहीं, अभी देखो यहाँ से पढ़ो, अल्लाह ने, अल्लाह ने लगा दिया। अल्लाह ने मोहर लगा दिया, अल्लाह ने मोहर लगा दिया। अल्लाह ने दरअसल मोहर लगा दिया। अगर अल्लाह नहीं आया होता तो वो कथा अल्लाह ने खत्म कर दिया, लेकिन अल्लाह ने से अल्लाह ने
मोहर लगा दिया पर किसपे, कुलूबिहिम। कुलूब कौन है भाई, ये इस्म है या फेल है या क्या है? इसमें हाँ इस्म है और जमा इस्म है। कल्ब की जमा क्या होंगी, कुलूब। हाँ तो अल्लाह ने मोहर लगा दिया दिलों पर उनके, ये बन रहा है मुदाफ मुदाफ इलैह। पढ़िए यहाँ पे, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। चलिए अगला कोई पढ़ने वाले बेटे? अब थक गए होंगे तो मैं बंद कर देता। आइए हाफिज साहब, कोई पढ़ने को तैयार? قالوا إنما نحن مصلحون. हाँ पढ़ते क्या? जी सर. वक्त बर्बाद नहीं करना बेटे, फटाफट फटाफट करना। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देना रहते। हाँ पढ़िए बेटे। कालो, قالوا उन्होंने कहा बिलाशुबा हम हाँ इस्लाह करने वाले हैं, हम ही इस्लाह करने हाँ। वाले हैं. देखिए मुझे आपके तर्जुमे नहीं चाहिए, रट्टा मारे हुए तर्जुमे नहीं चाहिए। कालू का मतलब है उन्होंने कहा, यहाँ तक हो गया। मुझे अब एक्सप्लेन करो, ये भी आपको पढ़ाया मैंने 1 महीना पहले, ये क्या है? इन्ना के साथ माँ लगाओ, इन्ना के साथ माँ कब लगा? यानी कोई किसी को याद आ रहा, बच्चे बोल सकते हैं? बड़ा करो। इन्ना हर्फ तौकीद नसब. माँ क्यों लगा हुआ है? तो जब भी इन्ना माँ आएगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव। बोलो एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव बोलते मखसूस, सिर्फ। जरा पढ़िए आगे। तो बोले यकीनन हम ही, इन्नमा नहनु, बड़ो इन्नमा नहनु, हम ही। हाँ हमारे अलावा दूसरा कोई भी नहीं। आया समझ में? ये बहुत फर्क पड़ता है, रटा रटाया और ग्रामर में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे, इन्नमा किस पे जोर मार रहा पर, हम सिर्फ, हम सादी उर्दू बोलेंगे। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ उनकी इस्लाह कर रहे थे, हम और कुछ नहीं कर रहे थे भाई। अब अगर बच्चे को 2 बच्चे भाई बहन खेल रहे, तो वो बहन ने बच्चे के बाला खींची, और बाद में चिल्ला रहा और रो रहा, तो अब्बा पूछे क्या हुआ है, कौन करा रहे? तो बहन बोली मैं तो सिर्फ लाड़ कर रही थी। आप समझे? मैं दूसरा कुछ नहीं कर रही थी अब्बू, मैं तो सिर्फ लाड़ कर रही थी। तो वैसा इनो बोल रहे आके अपने आप को छुपाने के लिए, हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे थे, हम थोड़ी बहका रहे थे उनको। तो इन्नमा इसके बाद जब भी मिलेगा आपको तो आप समझ जाना, हम तो सिर्फ, उसके सामने जो भी इस्म आएगा उसको पकड़ के बोलना, मैं तो सिर्फ, हम तो सिर्फ, वो तो सिर्फ, इन्हें तो सिर्फ। इन्नमा को अब से याद रख लो। देखिए आप लोगों के लिए एक एक चुन के लाए वाले आए थे। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे? प्यार नहीं हुई। हाँ अगली आज पढ़ो, कौन पढ़ डाले? चलिए वक्त खत्म हो रहा, कर पढ़ना चाहते हैं आप? ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम. शाबाश। लाल में जो है, हाँ ज़हबा जो है ये फेल है, 2 में से है, और इसमें इनसाइड डूअर और आउटसाइड डूअर होता है, लेकिन अगला इसम जो है उसके आखिरी हर्फ पे दम्मा है, तो इसीलिए आउटसाइड डूअर है अल्लाह, इस्म अल्लाह. तो इत्ते का मायने बताओ, खाली ज़हाबा के माने लो। ज़हबा
सर वो निकला ना, वो गया। वो गया, सॉरी वो गया। लेकिन यहाँ पर फिर सीखने की चीज है, ज़हाबा के साथ में जब भी आ जाएगा तो वो ले गया हो जाए, क्या बनेगा? ले गया। बोलो। हाँ, अल्लाह ले गया ज़हाबा के उन, साथ देखो हिम उनकी, पढ़ो, अल्लाह अल्लाह ले उनके गया उनके उनके नूर को ले, आंखों के नूर, नूर को लेके चला उनके गया। नूर को, तो अल्लाह वो ले गया तकलीफ। उनके नूर को। हाँ, अब जरा गौर से सुनो कि ये ज़हाबा जो है फेल है, उसके बाद में हर जर आते ही उसके मायने बदल जाते। सर ज़हाबा सिर्फ की बी, इस तरह सिर्फ बी आने से या कोई भी हरफ जर? नहीं, बहुत सारे उसके 4 तरीके हैं। ज़हाबा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो 4 तरीके से ज़हाबा। फिलहाल एक ज़हाबा उन्हें गया, अब पढ़ लीजिए ज़हाबा बी, ज़हाबा के साथ बी लगाया तो ले गया। आप इतने 2 चीजों को भी याद कर लीजिए। ठीक है सर। बी आया तो ले गया। तो देखो यहाँ पे 2 आयतें पढ़े अपन ने, इन्ना के पढ़े, वो सीखे आज हमने, इन्नमा सीखे और बी ज़हाबा भी पढ़ लिए। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? अच्छा, हाँ, आगे आप ही बाजी, आप ही छोड़ो, अगली आयत भी बाकी लोग का जो है बहुत कनार रहे। तरकहुम फी ज़ुलुमाती ला युस ला, एक मिनट सर, ला युबसिरून। हाँ, ला तरकहुम। युबसिरून। हाँ, देखो यहाँ पे तरकहुम 3 नंबर दिख रहे, तारका, उसने किया, क्या किया भाई? तारका। तरका, उसने तर्क किया, उन सब ने तर्क किया, छोड़ दिया, उन सब गायब मुज़क्करों ने छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया तक आ गया तो हमें फेल व फाइल मिल गया और मफूल भी मिल गया। तरका में जो है वो 2 में से आता है और 2 में से उसका करने वाला गायब है, इनसाइड है। उसने छोड़ दिया, तरका उसने छोड़ दिया उन्हें। हाँ, अब यहाँ पे फी जो है हर्जर है, ज़ुलुमातिन, ये जो है हमारा आतिन मुअन्नस है और जमा है। हाँ, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, उसने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। हाँ, अब यहाँ पे जो है मुज़ारे की चीज आ रही, ला युबसिरून, अभी सीखना बाकी है, ठीक है, लेकिन उन्हें, हाँ, क्या होता है? ला युबसिरून, वो देख नहीं सकते। वो देख नहीं सकते। ठीक है, ये ये भी जमा मुज़क्कर है। ये मुज़ारे है। ठीक है, अभी हम कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे मुज़ारे, आज खत्म कर रहा हूँ ये, कल से शुरू करना है मुज़ारे इंशाअल्लाह। अल्लज़ी खलक़हुम, पढ़ो, खलक़कुम। पहले बोलो, खलक़ा का मतलब क्या? 3 ज़बर दिख रहे हैं, उसने ही क्रिएटेड, ये उसने है, तख्लीक की। उसने तो तख्लीक बोलो अल्लज़ी, हाँ जरा सुनेंगे, जिसने, इसके साथ लगा के बोलो, जिसने तख्लीक की तुम सब की, वो जिसने तख्लीक की, बोलो वो जिसने तख्लीक की तुम सब की। शाबाश, फिर पढ़ो, अल्लज़ी जअला लकुम फिराशा। हाँ, फिर से जाला, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, हाँ, जमीन को फर्श। अमर अल्लाहु बिही अन युसल्ला, जिस अल्लाह ने, हाँ, जिस अल्लाह ने, अब यहाँ पे जरा सा जो है ये पैसिव में आता है, वसला का मतलब है विजिट करना या मिलना, ये जो है पैसिव वॉइस में है, जिसने मिलाने का हुक्म दिया। ये छोड़ दो, कल से अपन जब पढ़ेंगे, जब पढ़ा बताऊंगा पैसिव। हाँ, तो उन सब ने सजदा किया, ये जमा सिवाय इल्ला सिवाय इब्लीस के। शाबाश। हाँ, फताबा अलैहि, हाँ, तौबा कबूल की। अब यहाँ पे भी जो है ना, ताबा के बाद में अलैहि आएगा तो कबूल किया हो जाएगा, और इला आ गया, अलैहि आ गया तो कबूल किया होगा। ये सीखना है, तौबा किया। जरा खामोश रहना भाई, मेरे
अल्लाह के लिए खामोश रहो। इला आ जाएगा तो उसने तौबा की, और यहाँ पे क्या हुआ, फताबा इलैहि, तो उसने उनकी तौबा कबूल की। दोनों में बहुत फर्क है। बंदे ने तौबा किया तो इला बनाएंगे, फताबा के साथ इला लगाएंगे, और अल्लाह ने कबूल किया तो अला लगाएंगे। ठीक है। तो सर इसके मायने होंगे उसने तौबा कबूल की उनकी। हाँ, उसने उनकी तौबा कबूल तौबा की। कबूल जी सर। फमन तबिआ हुदाया, ये भी आपको दिएगा। अल्लज़ीना कफरू बि आयातिना, ये पढ़िए। हाँ यहाँ पे अल्लज़ी का मतलब है एक, वो जिसने, अल्लज़ीना का वो जिन्होंने कुफ्र किया, कुफ्र किया, लोगों ने, जो जिन लोगों ने कुफ्र किया, भी आयातिना, हमारी आयतों को इनकार किया। इसका मतलब वो जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया। परखना। इस आयत को जरा लिख के रखिए, याद करो। सामने क्या बोलना, याद करो। याद करो। हाँ, जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा, देखो, परखना, चीरना, दो टुकड़े, बिकुम तुम्हारे लिए, अल बहर, ये हो गया मफूल, समंदर को बहर कहते हैं। सुम्मा, फिर, हाँ, क्या है, अफौना, अफौना माफ करने को कहते हैं, माफ किया, हमने माफ किया, हाँ, हमने तुम्हें माफ कर दिया, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये अब बहुत सारे लेने वाले, रोज कम से कम 100 आयतें लेने का इरादा है हमारा। तो आप ऐसा सुस्त हो जाएंगे तो कैसा होगा। आप लोग बढ़कर, आगे बढ़कर कोशिश करके करना है, क्योंकि हर आयतों में कोई ना कोई नयापन रहेगा। आप लोगों के लिए चुन चुन के लाए हुए हैं आयतें हैं ये। आप जरा ख्याल करें, यहाँ पर आपको कोई चेक नहीं कर रहा, कोई इम्तिहान नहीं ले रहा है, आपके जरिए बाकी के लोगों का एजुकेशन हो रहा है। और ये वीडियोस को अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आप जब अकेले में कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कल की क्लास में हमने अत्तहियात कंप्लीट किए थे, उसको पढ़ने का तरीका और उसका तर्जुमा, उसका ग्रामर भी हमने देखे। तो आप सब में से कोई एक या कोई दो जिनकी कल गलतियां आई थी, वो लोगों में से कोई सुनाएंगे, खाली बस सिर्फ 2 लोग पढ़ेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मतलब किसी की भी गलती नहीं आई। नहीं सर, मेरी आई। चलिए पढ़िए, सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि हिस्सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो इबादिल्लाह का लाम थोड़ा सा मैंने पिछली बार मोटा पढ़ लिया था। अभी आज वो करेक्शन हो गया आपका, आपने करेक्ट कर लिया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
چلیے اور کوئی ایک ہے جو پڑھنا چاہتے؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آگے أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشاءاللہ. کل آپ نہیں تھے کیا؟ جوائن نہیں ہوئے تھے کلاس میں؟ نہیں. ہاں تو تشہد جب بھی ہم پڑھتے اس کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلے التحیات سے لے کے عباد اللہ الصالحین. التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ الگ ہے. اس کے بعد ہے پھر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دوسرا جملہ. اور پھر تیسرا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. تو وہ الطیبات پہ آیت کرنے کے قاعدے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ساکن کے ساتھ پڑھیں گے طیبات. یہ ذہن میں رکھیے، جب بھی پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیے. تو کل کی کلاس میں آخر میں نے ایک جملہ لکھا تھا بورڈ پہ. وہ جملہ کون سا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ ہاں اعوذ باللہ شر حاذا. ہاں اعوذ باللہ من شر حاذا. شر حاذا. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ دونوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من شر حاذا. اس کا پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے. شروعات سے ہم یہ لفظ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ پہلے تو 2 جملے، 2 لفظ جو ہے، 2 الفاظ یہ تعوذ کے ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. عین واو پہ شروع مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. اور دال کے اوپر پیش ہے حرکت، یعنی کہ پھر باللہ. اس کے بعد ہے من، یہ بھی روزانہ پڑھتے ہیں. حاذا، حاذا بھی روزانہ پڑھتے ہیں. نیا شرری پر ہے را، را مشدد ڈبل پڑھنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے. من باللہ من. وائس کلیئر نہیں آ رہی. مائک بند کر دیجیے اگر کسی کا چالو ہے تو. اعوذ باللہ من شر، یہ ہے ایک جملہ. اب اس کا ترجمہ اور اس کا گرامر آج ہم کو دیکھنا ہے. تو آپ میں سے کوئی کوشش کریں گے کہ اسے گرامر دیکھنے کی؟ سر آواز صحیح نہیں آ رہی ابھی بھی. ابھی بھی نہیں آ رہی ہے بالکل بھی؟ جی جی بریک ہو رہی سر. ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من شر حاذا. تو ہم میں سے یا آپ لوگوں میں سے اور کوئی ہے جو اس کی گرامر، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا گرامر دیکھیں گے، جو ابھی تک کا گرامر ہم نے پڑھے؟
कोई है, कोशिश करेंगे कोई आप में से कोई एक? करना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाह, मैं हम्म, पनाह मांगती हूँ अल्लाह की इस बुराई के शर से। मैं पनाह मांगती हूँ इस अल्लाह की इस बुराई के शर से। बुराई से, इस बुराई से। इस बुराई से, ठीक है। इस बुराई से, ये तर्जुमा मैंने लिख दिया। अभी आपने तर्जुमा इसका कर दिया। अभी सबसे पहले आयतें भी जब आप पढ़ते, कोई भी आयत रहो, छोटी आयत हो या बड़ी आयत हो, या कोई जुमला हो या कोई दुआ हो, कुछ भी हो जाओ, अरबी इबारत जब भी हमारे सामने लिखी हुई नजर आई, सबसे पहले उसका तर्जुमा करना नहीं है। हमको आता तर्जुमा करने, हमको इसका तर्जुमा मालूम भी है, लेकिन फिर भी उसका तर्जुमा नहीं करना है। एकदम शुरुआत से शुरू करना है। हर एक लफ्ज को अलग अलग करके देखना है। अगर फेल है तो फेल को पहचानना है, इस्म है तो इस्म का DING निकालना है। जब तक आप उसकी एराबी हालत को नहीं समझेंगे इस्म की, आपको फेल फाइल मफूल नहीं समझ में आता, आपको मुब्तदा खबर नहीं समझ में आएगा। तर्जुमा तो हम बचपन से सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, याद करके हम तर्जुमा कर देते किसी भी लफ्ज का, किसी भी जुमले का। लेकिन कुरान की आयत या दुआएं, इसको अगर आप एग्जैक्टली देखना है कि इसके अंदर है क्या लिखा हुआ, तो शुरुआत से पहले ये करना है कि हर एक लफ्ज को अलग अलग करना है। तो अब आप कोशिश कीजिए हर लफ्ज को अलग अलग करके तर्जुमा करने की। अऊज़ु, मैं पनाह मांगती हूँ बिल्लाहि, अल्लाह की, नहीं नहीं मिन नहीं, शर्रे, फिर आप तर्जुमा कर रहे, फिर आप तर्जुमा कर रहे। तर्जुमा नहीं करना है, तर्जुमा हम आखिर में करेंगे ना। अभी यहां पर लिखे हुए है आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाजा। सबसे पहले इनको अलग अलग कर दो। हर एक लफ्ज को हमने अलग अलग कर दिया, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। हमको, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं। आप एक आयत सीखो, आपके लिए काफी है, लेकिन सही तरीके से सीखना है। अब ये सबको अलग अलग कर दिया हमने। आऊज़ु, अब आऊज़ु ये लफ्ज है, तो अब इसको पहचानना है इस्म की 3 किस्मों में से। इस्म है, फेल है, या फिर हर्फ है। फेल है सर। ये फेल है। अब फेल है तो फेल कौन सा है? पहले माजी है, मुजारा मुतकल्लिम, मुजारे है, अम्र है, या नाहिया है। सबसे पहले इन चारों में से पहचानना है कि ये फेल कौन सा है। मुजारे, अम्र, नाहिया। मुजारे है। ठीक है। मुजारा मुतकल्लिम, मुजारे है, ठीक है। अभी मुजारे तो इस क्लास के अंदर अभी हमने पढ़े नहीं, आप लोगों ने पहले पढ़े, इस वजह से आपने बता दिए कि ये मुजारे है और मुतकल्लिम है। तो चलिए बहरहाल आप बता दीजिए। अब भी जब हमने फेल पहचाने कि ये फेल है, उसके बाद फिर फेल है तो कौन सा फेल है? मुजारे है। अब मुजारे है तो इसके अंदर ये देखना है कि 14 सीगों में से सीगा कौन सा है, ये कौन से नंबर वाला सीगा है, कौन सा सीगा है ये? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम यानी के 13, हाँ, नंबर 13 के एतबार से 13 नंबर, और जमायर के एतबार से अना। आना भी 13, हाँ, अना बोल तो 13 है ना, 13 नंबर पे आता अना। तो ये 13 नंबर वाला सीगा है। कौन से नंबर वाला? 13 नंबर वाला। और इसका फाइल कौन है? अना। मैं। फेल जब भी नजर आ रहा तो आपको देखना है, पहले हमने पहचान लिए कि फेल है। अब फेल है तो फिर कौन सा फेल है? माजी है, मुजारे है, अम्र है कि नाहिया है? तो ये मुजारे है, पहचानना है मुजारे है। अब मुजारे है तो फिर उसके अंदर देखना है सीगा कौन से नंबर का है। आपको और आसान अगर करना है तो आप नंबर याद रखिए, कौन से नंबर का सीगा है।
تو یہ 13 نمبر کا صیغہ ہے. اب 13 نمبر کا صیغہ ہے تو پھر انا 13 نمبر پہ کیا آتا؟ انا. تو اس کا فاعل ہوا انا. اناس. جی جی انا اس کا فاعل ہے. یہ ہم نے پہچان لیا فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور یہ صیغہ واحد متکلم کا یعنی کہ انا کا ہے. 13 نمبر والا صیغہ ہے، اس کا فاعل ہے انا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے باللہ. اب باللہ اب حرف جر ہے جی. جار مجرور. جار مجرور. جار با مجرور. حرف جر ہے. با با حرف زیر جر بی ہے. حرف جر ہے. با حرف جر جار ہے مجرور. اور ہاں. مجرور ہے للہ. اللہ. اسم مجرور. اسم مجرور. ہاں. اسم صورت ہے، اسم ہے. معرفہ ہے، یہ حالت کے اعتبار سے جر ہے، واحد ہے، واحد ہے، اور مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر. حالت کے اعتبار سے جر ہے، واحد ہے، مذکر ہے. اب حرف جر آیا تو اس میں مجرور آ گیا. اب یہ دونوں مل کے ایک مرکب بن گیا. یہ مرکب کا نام کیا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. اب اس کے بعد ہے من. من کیا ہے؟ حرف جر ہے سر. حرف جر. حرف جر ہے. اور اس کے بعد ہے شرری. شرری مجرور ہے سر. اسم ہے سر، کیونکہ حرف جر کے بعد اسم ہی ہوتا ہے. اسم اسم ہے. مجرور. مجرور اور حالت جر ہے. ہے. پھر یہ دونوں مل کے بن گیا جار مرکب مجرور. جاری. جار اسم مجرور. جار مجرور مل کے بن گیا مرکب جاری. مرکب جاری. اب یہ ہے حاضہ. حاضہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے سر. اسم. اسم ہے. اسم ہے. معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ کیوں ہے؟ اس میں اشارہ. اسم اشارہ. اس میں اشارہ ہے. ہاں. اور یہ حالت کے اعتبار سے مبنی. مبنی ہے. مبنی ہے. عدد کے مذکر ہے. اعتبار سے واحد ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. مذکر ہے. تو یہ ہر لفظ کو پہلے الگ الگ کر دینا ہے، اس کے بعد پہچاننا ہے فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، کیا ہے. پورا تماشا اس کے بعد. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ اگر گڑبڑ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے. آپ کوئی صیغہ پکڑ میں نہیں آتا، آپ خالی اندازے سے ترجمہ کر دیتے، ہم سمجھ جاتے، بس چلتے رہتی گاڑی. آپ کو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہر ایک آیت کو. پھر اس کا اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہے تو پھر فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. پھر مفعول کی جیسا سر نے بتایا الگ الگ قسم ہے، تو پھر وہ کون سی قسمیں ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، یہ قواعد کا دھیان آپ کو رکھنا پڑے گا. تو بہرحال ہم نے ہر ایک لفظ کو الگ الگ کر دیے. فعل آ گیا، اس کے بعد ہے باللہ، پھر من شرری حاذا. اب کریے اس کا ترجمہ. اب آپ بتائیے ترجمہ کیا ہے. اعوذ کا ترجمہ میں بتاتا آپ کو. میں پناہ میں آتا ہوں، مانگتا ہوں نہیں. میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. ہاں. اس کے بعد باللہ. اب ترجمہ کیجیے آپ. اللہ کے. اللہ کے اللہ کی. ہاں. شر سے. یہ شر سے. اس شر سے. اس شر سے. برائی سے. برائی سے. ہاں. شر یہ برائی برائی سے یا یہ شر سے. شر سے. ٹھیک ہے نا. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس کے شر سے. اس کے شر سے. اس کے شر سے. اعوذ باللہ من شر ھذا. یہ ہے ہر ایک لفظ کو الگ الگ کیے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیے. اب یہ جو دعا ہے یہ ایک دعائیہ الفاظ ہے. اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. قرآن ہے کوئی دوسری کتاب. آپ اس کو اعوذ باللہ من شر ھذا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کچھ الفاظ کا اور اضافہ کر دیا جاتا. یا پھر ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں یا ربی انی
अऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़ा, तीनों और तरीके से आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। जैसा इसका हमने तर्जुमा देखे, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की इसके शर से, और ये पढ़ना कब है, कुछ अंदाजा है? बुरे हालत देख के, बुरे हालत आए तो। शैतान को कोई भी भगा बुरी चीज अगर देख लिए, हाँ, बुरी चीज देखे, कोई भी ऐसी चीज जिसका हमको खौफ है कि ये हमारे लिए नुकसानदाह है, उसको देख के ये पढ़ लेना है। जैसे आप मिसाल के तौर पे, मैं बहुत आम मिसाल दे रहा हूं, हमारे पास आज का जो माहौल है, सबसे ज्यादा टैबलेट खाने का, गोलियां खाने का है। कुछ भी हुआ, पेन किलर लिए, खा लिए। तो पेन किलर खा खा के एक ऐसा है कि किडनी पे इफेक्ट पड़ता, ठीक है? तो वो खाते वक्त ये दुआ पढ़ लो, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा, अल्लाहुम्मा शाफी एक बोलते हैं, और दूसरा उसके साथ ये पढ़ लो कि औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा, ऐ अल्लाह इसके शर से हिफाजत फरमाए, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं ये शर से, इसके शर से। या कोई भी ऐसी चीज है जिसका हमको खौफ है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकती, उस वक्त में ये पढ़ लेना। वसवसा आ गया शैतान के लिए, कुछ भी, उस वक्त में ये दुआ पढ़ लेना, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा। बहुत छोटी सी दुआ है। ऐसे ही किस्म के कई दुआएं हैं जो अहादीस में, दुआओं की किताबों में आपको मिल जाते हैं। आप उसको निकालिए, लिखिए, उसका ग्रामर देखिए और फिर उसका तर्जुमा कीजिए। जब आपको उसका तर्जुमा मालूम रहेगा तो आप किस वक्त में वो दुआ पढ़ना है आपको जहन में आ जाता। बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं, दुआओं की किताबों में मौजूद है, लेकिन उसको हम किसी खास वक्त के लिए मुकर्रर कर दिए कि ऐसा हुआ तो ही पढ़ना है। जब आपको तर्जुमा, उसका ग्रामर मालूम रहेगा तो आप उसके तर्जुमे के एतबार से कहीं भी वो दुआ को आप पढ़ सकते। बात समझ में आ रही? जी जी जी। और दुआओं का करने का एहतमाम माशाल्लाह आप लोग करते भी। आजकल का जो माहौल है, ये माहौल के अंदर मुसलमानों के हालात जो आज इस वक्त में है, मेरी नजर में सबसे बड़ी इसकी वजह है हमने दुआ करना या दुआ मांगना छोड़ दिए। इनफिरादी तौर पे जो दुआएं होती थी, अपने आप के अंदर जो अल्लाह से दुआएं मांगते रहते थे या लोगों के लिए दुआएं करते थे या लोगों को दुआएं देते थे, ये चीज आज बंद हो गई। बस खाली एक फॉर्मेलिटी हो गई दुआओं में याद रखना, बस। वो भी निकलते वक्त, वापस जब जा रहे, रुखसती के टाइम पे बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दुआ में याद रखना। तो दुआ का एहतमाम हर वक्त करना है। कोई भी चीज, अभी हम क्लास में बैठे हुए, एक आयत आ गई, उसको पढ़ना है। एक तो तजवीद के मुताबिक पढ़ना है, फिर उसको समझना है। बैठे बैठे आप दुआ कीजिए अल्लाह से, ए अल्लाह सिखा दे, ए अल्लाह मुझे सिखा दे, ये मुझे पढ़ना सिखा दे, मुझे समझना सिखा दे, मुझे समझाना सिखा दे। हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगने की आदत डालना है, हर वक्त में। कोई ऐसा खास वक्त नहीं है कि हम मगरिब के वक्त बैठ गए, तहज्जुद के वक्त में बैठ गए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते वक्त, हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगना है। तो करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, जरूर जरूर। आप सब अपने लिए भी कीजिए और सब के लिए कीजिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाल्लाह। जी। तो यह है लिखा हुआ अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा। अच्छा, इसके अंदर हमने दो मुरक्कबात पहचाने, दो है, ये एक मुरक्कब जारी और ये भी है मुरक्कब जारी। इसके अलावा एक और मुरक्कब है इसके अंदर छुपा हुआ, कोई बता सकते क्या वो कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी है क्या सर? मुरक्कब इशारा, मुरक्कब इशारी, इशारी, मुरक्कब इशारी, इशारी। हाज़ा हाज़ा मुरक्कब इशारी है, इसमें इशारा है तो इसका मुशारुन इलैहि होना। तो मुशारुन इलैहि क्या है? मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब जारी तो ये हो गया, मुरक्कब इजाफी है सर। एक इजाफी है सर अंदर।
मिन शर्री हाजा, ये मुरक्कब बनेगा क्या सर? ये है बुराई। मुरक्कब इशारी, इसमें इशारा मुशारुन इलैह। इसमें इशारा मुशारुन इलैह। आपको याद है तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, एक मर्तबा हमने आयत पढ़े थे, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। या फिर दूसरा एक जुमला था जालिकल किताबु। या जालिकल किताबु, ये जालिकल किताबु मुरक्कब इशारी है। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, जब इसमें इशारा पहले आता जुमले में और उसके बाद में मारिफा इस्म या मुरक्कब कोई भी आ जाते तो ये जुमला इस्मिया होता, और वही तिलका को अगर उठा के आखिरी में ला लिए तो ये मुरक्कब इशारी बन जाता। याद है आपको? आप में से किसी को याद है? सर इसमें एक मुरक्कब, ये जो मुरक्कब इशारी जो बन रहा सर, उसमें मुशारुन इलैह अलिफ लाम से शुरू होता ना सर? मुशारुन इलैह अलिफ लाम से शुरू होता, लेकिन ये जो है ये है शर, हर किस्म का शर। मुरक्कबात जब आते तो उसके अंदर इसमें इशारा आखिर में आता, लास्ट में आता। अच्छा, तर्जुमे पे आपने गौर नहीं करे। मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की इसके शर से या इस शर से, तो इस शर से बोले तो इशारा मुशारुन इलैह, आप मुरक्कब इशारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखो हाजा आ गया, ये एज इट इज जैसा है यहां पे लिख देंगे, हाजा शर्री। इसके मायने क्या हो रहे हैं? ये है शर, ये है बुराई। नहीं, ये है कहाँ से सर? नकेरा कहाँ है वो? ये मारिफा है और ये नकीरा है। चलो शर्रिन कर देता हूँ। हाँ अब है, अब है हाँ जी, ये बुराई है। शर्री हाजा, बुराई है ये। नजर आया था ऊपर, जी बताएंगे कोई? कल देखा ब्राउन कलर का। शर्री हाजा तो ये बुराई, शर्री हाजा बुराई है ये। देखो अगर हम शुरू से देखेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्री, अगर हम यहाँ पे से हाजा निकाल दिए, ठीक है, तो ये तर्जुमा इसका क्या होगा? मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शर से। अब कौन से शर से? किसके शर से? ये शर से। तो ये इबाम दूर करने के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल हो रहा है कि ये हाजा। नहीं समझे? इतना खाली याद रखना है हमें, इसके अंदर सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि मुरक्कब इशारी अगर शुरू में आ रहा तो हाजा के बाद मारिफा इस्म होना वाहिद इस्म, तो ये मुरक्कब इशारी बन जाता। उसकी मिसाल है जालिकल किताबु। और अगर कोई मुरक्कब इस्तेमाल हो रहा और उसके पहले उसको हरफे इसमें इशारा अगर इस्तेमाल हो रहा तो वो जुमला इस्मिया बन जाता। उसकी मिसाल है तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। उसके मायने होते ये है वाज़े किताब की निशानियां। और अगर वही तिलका को पूरे जुमले को मुरक्कब इशारी बनाना है तो तिलका शुरू से निकाल के आखिर में लगा देना है, तो जब ये बन जाता मुरक्कब इशारी। अब ये हो जाता आयातुल किताबिल मुबीनी तिलका,
یعنی کہ کتاب کی یہ نشانیاں، کتاب کی نشانیاں کون سی؟ یہ پہلے تھا یہ ہے کتاب کی نشانیاں، اب تل کا آخری میں لگا دیا تو یہ کتاب کی یہ نشانیاں. تو یہ دعا یاد کر لیجئے آپ سب. یہ یاد ہو گئی آپ لوگوں کو دعا؟ اعوذ باللہ من شر حاذا. اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک اور طریقہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من شر حاذا. من شر هذا. اللهم إني أعوذ بك من شر هذا. سر یہ چار اللہم انی أعوذ بك اعوذ بکا. اب یہاں پہ اس میں اور اس میں فرق ہے. اس کے اندر ہے اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اب یہاں پہ دیکھو اللہم، اللہم کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ. أي الله. اے اللہ. کیونکہ یہ میم جو ہے، میم زبر ما مشدد، یہ ایک حرف ندا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا خالی. تو یہ ہو جاتا اللہم، اے اللہ. انی انا، بے شک ہم انا حرف توکید و نصب، اس کے ساتھ انا لگ رہا. انا جب تبدیل ہوتا حرف کے ساتھ آتا تو ای بن جاتا. تو یہ دونوں مل کے بن گیا انی، بے شک میں. اے اللہ بے شک میں بے شک میں اعوذ پناہ میں آتا ہوں بکا تیری تیری، میں پناہ میں آتا ہوں تیری من شر حاذا، اس شر سے، اس کے شر سے. اللہم انی اعوذ بکا. اب آپ جیسا بولتے، آپ کو جس طریقے سے بولنا ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے آپ ویسا بولیں گے. آپ ایسے بھی بول سکتے اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، یا اے اللہ بے شک میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی. جو بولنا ہے آپ کو آپ اپنے حساب سے بولیں گے. اور دوسرا اس کا پڑھنے کا طریقہ اور ایک ہے یا ربی. یا ربی. اے میرے رب. یا ربی. انی بے شک میں بے شک میں اعوذ بک اعوذ من شر بک. بکا. یہ ہے یا ربی. یا حرف ندا ہے اور رب اور یا اس کے ساتھ لگے والی ہے یا، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. ربی یعنی کہ میرا رب، اور یا ربی اے میرے رب. اے میرے رب. یا نکال دیے تو یہ ربی ہو گیا. اس کے معنی ہے میرا رب، اور اس کے پہلے یا لگا دیے تو آپ کیا بن گیا؟ اے میرے رب، اے میرے رب. انی اعوذ بکا، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری. نادا منادا نہیں ہوا سر، نادا منادا نہیں ہوتا. نادا منادا نہیں، ندا منادا. یہ حرف ندا اور یہ منادا. حرف ندا یا ہے اور ربی منادا ہے. منادا. غور کیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے. ربی کے معنی ہے میرا رب، یا ربی کے معنی ہے اے میرے رب. اے میرے رب. ہاں اے میرے رب، یہ ہے یا ربی اے میرے رب. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا تبدیلی ہوتی. قرآن کے اندر جو استعمال ہوتا اے میرے رب بول کے، وہاں پہ دو چیزوں کو حذف کر دیا جاتا. ایک تو سب سے پہلے یا الف زبر یا حرف ندا کو ڈیلیٹ کر دیے تھے، اور دوسرا یہ جو یا ہے اس کو بھی حذف کر دیتے، نکال دیتے. یہ بچتا صرف ربی. کیا بچتا؟ ربی. تو جبھی بھی آپ کو صرف ایسا ملے گا ربی، را کے اوپر زبر، با کے نیچے زیر تشدید کے ساتھ ربی. اس کے ساتھ یا لگے والی نہیں، اس کے ساتھ نون الف زبر لا لگے والا نہیں، اس کے ساتھ کاف زبر کا لگے والا نہیں، کچھ لگا ہوا نہیں ہے. خالی اتنا ہی لکھا ہوا کہیں بھی نظر آیا آپ کو تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے اے میرے رب. کیا ترجمہ کریں گے؟ اے میرے رب. اے میرے رب. ربی زدنی علما. ہاں ربی زدنی علما.
تو جبھی بھی آپ کو ربی صرف یہ ملے گا ربی تو آپ کریں گے اے میرے رب. آیت آئی تھی آج ربی انی دعوت قومی لیلن و نہارن. دعوت عین واو زبر او, دعوت نہیں, دعوت دعوت قومی پکار لیلن و نہارن. تو یہ تین طریقے ہیں یہ دعا کو پڑھنے کے. پہلا ہے اعوذ باللہ من شر ھذا, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا, ربی انی اعوذ بک من شر ھذا. تو یہ دعا یاد کر لیجئے, اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیے. اور ہاں یاد کر لیجئے, اس کو تجوید کے مطابق بھی یاد کریے. اب ہم آگے چل کے کل کی کلاس میں انشاءاللہ فعل مضارع شروع کریں گے, اور نماز کی دعاؤں کے اندر سے ہم لیں گے دعائے معصورہ, اللہم انی ظلمت نفسی. ظلمن کثیرہ. ہاں تو یاد کر لیجئے اس کو. اگر یاد تو ہے آپ لوگوں کو, روزانہ ہی پڑھتے یہ تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد کر لیجئے. الحمدللہ. تو چلیے آج یہاں پہ رکیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پلیز تھوڑا سائڈ دیجیے تو میں اسکرین شاٹ لے لوں اس کی. جی جزاک اللہ خیر.